numerical and then we will start. I'll write the given data. What is given data? Now, it says that reinforced concrete beam is simply supported over a span of 5 meters. So the span for the reinforced concrete beam is 5 meters. It is saying that, and it carries a uniformly distributed load of 25 kilonewton per meter. So this load is 25 kilonewton per meter, including its own weight. It is given including its own weight, मतलब self weight उसमें included है. If the size of the beam is restricted to, now it says the size of the beam is restricted to 300 by 500 mm. Determine, first he is asking you to calculate the area of the steel. Second, the area of the compression steel. See what he says is, question ऐसा दिया है, determine the area of the tensile steel and compression steel if required. So compression steel की अगर जरूरत है तो ही provide करो. This doesn't indicate it is a problem of doubly reinforced. It says अगर जरूरत है तो ही उसको ASC प्रोवाइड करो. मतलब आपको चेक करना है कि वेदर ये सिंगली रेनफोर्स्ड है कि डबली रेनफोर्स्ड है. Then he is saying use M20 and Fe415, and he is also saying that assume the effective cover to steel as 40 mm. You know what is the effective cover. So he is saying that the effective cover is 40 mm. तो अगर मैं इसको simply, let me say that if I try to represent it, it says that it is, this is 300, this is 500, एंड लेट मी से यहाँ पर स्टील है. मुझे पता नहीं कि अभी ये सिंगली रेनफोर्स्ड है कि डबली रेनफोर्स्ड है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो इफेक्टिव कवर है ये कितना है, 40 mm है. इसमें से मुझे डायरेक्टली आई विल गेट द इफेक्टिव डेप्थ. सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन मैंने पहले से लिखा है. सो फर्स्ट आई विल राइट द इफेक्टिव डेप्थ इज 500 minus 40. So it is 460. Effective depth मुझे मिल गया from the given condition itself. Then उसने बोला है कि M20 है, तो सिग्मा CBC कितना होगा? Yes. 7 Newton per m square. Yes. Fe415. So sigma ST is 230 Newton per m. Okay. Then he has given us the value of UDL acting. So I can calculate bending moment maximum. What is bending moment maximum? It is simply supported, so WL square by 8. W is 25, span is 5 by 8. So MR with respect to the bending moment. So let me say that the M is equal to QBD square. ये हमको पहले से पता है. MR is equal to QBD square. This is MR for the balanced one. So what is that? QBD square. तो मुझे ये values निकालने पड़ेंगे, फिर मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ. तो कैन यू कैलकुलेट Q? किसी को याद है Q कैसे कैलकुलेट करते? आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओ. मैं डोंट सी द इक्वेशन विच आई एम राइटिंग. Yes, can anyone give me the value?
yes. एंड MR, मुझे ये दोनों को कंपेयर करना है टू गेट वेदर इट इज अ सिंगली रेनफोर्स्ड और अ डबली रेनफोर्स्ड. इफ यू सी दिस, I can say that bending moment maximum is greater than MR, which is for our balance section. Greater है ना? So when it is greater, balance से भी ज्यादा है. It indicates that I need to design this section as a doubly reinforced section. So what I'm going to write, therefore the section, you need to mention this when you are solving. The section is to be designed as doubly reinforced. Is it okay? It is a doubly reinforced beam. Is it okay? डबली रेनफोर्स्ड बीम होने के बाद उसने क्या बोला है, पहले तो ये बोला है कि एएससी रिक्वायर्ड है क्या, देखो तो मुझे एएससी अभी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डबली रेनफोर्स्ड है. अभी मुझे एएससी का वैल्यू भी फाइंड करना है और एएसटी का वैल्यू भी फाइंड करना है. नाउ आई नो दैट AST1 is equal to M1 upon sigma ST into JD. I know this. मेरे पास M1 का वैल्यू है. What is M1 for me? M1 is nothing but for the balanced. It is the moment for this balance. ये जो हमने MR निकाला ना, this is our M1, which is also the moment for the balance section. तो मेरे पास M1 already है. What is that? 57.84. So I will say it is 57.84 into 10 raised to 6 divided by sigma ST. J का वैल्यू 0.9, D का वैल्यू 460. तो मुझे AST1 मिल जाएगा. नाउ आई नीड AST2. पहले देखो फिर लिखो, मैं आंसर अभी नहीं पूछ रही हूँ आपको. अभी मुझे AST2 चाहिए. AST2 क्या है? M2 अपॉन सिग्मा ST D माइनस D डैश. ये है AST2. लेकिन मेरे पास M2 नहीं है. बट आई नीड टू फाइंड M2. हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड M2? अगर आपको याद है, मैंने लिखा था M इज इक्वल टू M1 प्लस M2. तो अगर सिर्फ रीअरेंज करती हूँ मैं इसको, तो मुझे मिलेगा M2. नाउ आई हैव दिस वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया. व्हाट इज दैट वैल्यू? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का 78. 78.125 माइनस व्हाट इज M1? 57.84. तो मुझे इसमें से M2 मिलेगा. Once I get the value of M2, put it here, I will get the value of AST2. अभी AST2 के लिए मुझे D माइनस D डैश चाहिए. तो ऑलरेडी इफेक्टिव कवर कितना दिया है? 40. तो दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट ना, वेदर इट इज कंप्रेशन और टेंशन. सो हियर आई विल गेट, ये M2 का वैल्यू सिर्फ बताओ मुझे क्या है? 78.125 5 into 10 raised to 6 divided by 230 into D is 460 माइनस D डैश इज 40. तो मुझे यहाँ से मिलेगा AST2, यहाँ से AST1, यहाँ से AST2. अभी मुझे दोनों वैल्यूज मिल गए. तो मैं, इसने क्या बोला है? टोटल एरिया ऑफ स्टील. सो एरिया ऑफ स्टील इज व्हाट? AST1 प्लस AST2. इसको ऐड करो तो आपको टोटल AST मिलेगा. जस्ट लिसन, डोंट राइट. आई सेड आई विल गिव यू टाइम. जस्ट लिसन. AST टोटल मिल गया, मतलब पूरे सेक्शन में एरिया ऑफ स्टील कितना जाएगा ये मुझे मिल गया. Once I get the total area of steel, I need to calculate the number of bars. Number of bars कैसे calculate करोगे? Do you remember? It is AST, total area of steel upon pi by 4 into diameter. कौन से diameter का bars आप use करोगे? Whether it is 16, 12 or 18. So let us say it is 16. So pi by 4 d square. इसमें से मुझे number of bars मिलेंगे. See what answer you get and round it up to a nearest value. Once you complete that, you need to calculate ASC, that is area of the steel in compression. हमने अभी देखा कि area of the steel we have derived the formula, तो आपको सिर्फ वो formula apply करना है. No need to derive anything else. Just
write the formula and just solve it. You will get area of the steel in compression. AST2 मेरे पास है, मेरे पास D का वैल्यू है, X का वैल्यू, सब वैल्यूज है मेरे पास. मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ ASC. बराबर लिखा है ना मैंने, ये X है, दिस इज X माइनस D डैश. ओके, वंस आई गेट ASC, फिर से कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स कितने हैं एंड प्रोवाइड द नंबर ऑफ बार्स फॉर द रिस्पेक्टिव डायमीटर. इज इट ओके? यहाँ तक हमने किया है. इसके Yes, बाद अभी ma'am. आप लिखो AST1 AST2 ये सब लिखो फटाफट. मुझे लिखा K क्या है, 1/1 प्लस सिग्मा एस टी एम अपॉन सिग्मा CBC. J इज 1 माइनस K/3. यहाँ से आपको K मिलेगा. K का वैल्यू यहाँ डालो तो इसमें K/3 से आपको J मिलेगा. मैंने सिर्फ ये डायरेक्टली इक्वेशन में लिखा. आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने सिंगली रेनफोर्स्ड में किया है. वंस यू पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन आपको MR मिलेगा. यहाँ तक क्लियर है क्या? बताइए, रेनफोर्स डिजाइन करना है कि डबली रेनफोर्स, मुझे ये पता नहीं है. तो मैं कंपेयर करूंगी MR को और बेंडिंग मोमेंट को. अगर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हुआ MR से तो डबली रेनफोर्स्ड होगा. बराबर है. अगर बेंडिंग मोमेंट कम हुआ MR से तो वो हुआ सिंगली रेनफोर्स्ड. मैं जब भी इसको कंपेयर करती हूँ, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है बैलेंस सेक्शन से, मतलब बैलेंस सेक्शन का जो MR है दैट इज नॉट इनफ फॉर द सेक्शन टू रेजिस्ट द मूवमेंट. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डबली रेनफोर्स्ड करके डिजाइन करना पड़ेगा. आया समझ में यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझा. ओके. अभी डबली रेनफोर्स्ड करना है, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर डबली रेनफोर्स्ड करना है तो मुझे AST1 AST2 as well as ASC, that is area of the steel in compression, ये सब मुझे कैलकुलेट करने हैं. What is AST1? I know AST1 is M1 upon sigma ST JD. M1 क्या है, मेरे पास ऑलरेडी M1 का वैल्यू है. M1 is nothing but the balance moment. ओके, तो मेरे पास बैलेंस मूवमेंट तो ऑलरेडी है 57.84, तो मैंने वो डाल दिया 57.84. सिग्मा एसटी क्या है 230. जे का वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया और डी मेरे पास ऑलरेडी है जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही लिखा 500 माइनस 40 दैट इज 460. तो मुझे AST1 मिल जाएगा. AST2 क्या है, M2 अपॉन सिग्मा एस टी डी माइनस डी डैश. लेकिन मेरे पास M2 नहीं है, फिलहाल नहीं है, बट आई कैन कैलकुलेट. कहाँ से? मुझे पता है टोटल M इज M1 प्लस M2. इफ यू हैव लिसन्ड द डेरिवेशन व्हिच आई हैव डन, ये सब वहां से ही लिया है मैंने ये लिखा था M इज इक्वल टू M1 प्लस M2. तो मेरे पास M है, मेरे पास M1 है, तो M2 मिलेगा मुझे. इजीली आई कैन फाइंड. तो मैंने वो वैल्यूज डाल दिए. व्हाट इज दिस M? this M is the bending moment. What is this M1? This is moment for the balanced section. What is this M2? This is moment for the unbalanced section. तो बैलेंस सेक्शन का MR मेरे पास है 57.84 जो मैंने अभी कैलकुलेट किया. मेरे पास बेंडिंग मोमेंट है WL²/8 फॉर द सिंपली सपोर्टेड कंडीशन, तो मुझे M2 मिल गया. M2 का वैल्यू AST2 में डालो तो आपको AST2 मिल गया. व्हाट इज द टोटल स्टील? उसने बोला है कि टोटल स्टील निकालो AST कितना है. व्हाट इज टोटल स्टील? AST1 प्लस AST2, ये टोटल स्टील है. सो मुझे AST टोटल मिल जाएगा. उसके बाद नंबर ऑफ बार्स निकालो. स्टील तो मिल गया, लेकिन कितने बार्स मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे वो निकालो. ASC निकालो, नंबर ऑफ बार्स ऑफ ASC निकालो. आपका डिजाइन खत्म हुआ. इसको रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म, तो आपको XC का वैल्यू मिल जाएगा. इज इट ओके विशाल? हाँ, यस मैम, यस मैम. ओके. तो अभी जिसने भी वैल्यूज कैलकुलेट किए मुझे बताओ. AST1 AST2 नंबर ऑफ बार्स, बाकी लोग कैलकुलेट करना है आपको. is 607.43. ओके, 607.406 में नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ. सो लेट मी से दैट 5 नंबर्स ऑफ बार्स आर प्रोवाइडेड. ओके. नेक्स्ट ASC 1.86. और किसी को मिला वैल्यू? प्लीज मुझे कंफर्मेशन चाहिए. और किसी को मिला है तो वेदर इट इज ओके.
यस, टेल मी, किसी को मिला है और वैल्यू? Yes, anyone else? Yes, be fast.